Good morning, students. Today we will start our next section, rebellion in the forest, means revolt in the forest. So who rebelled against the Britishers? The forest communities. Why? Because the changes in the forest law that were being imposed on them. Here are some of the important leaders who rebelled against the Britishers. First one, Sidhu and Kanu, belongs to Santhal Parganas. Basically, Parganas क्या है? Group of villages, or you can say that the subdivision of a district. Next, Birsa Munda of Chota Nagpur. You have already studied in 8th class about Birsa Munda of Chota Nagpur. And third, Alluri Sitarama Raju belongs to Andhra Pradesh. In this video, we will discuss about an important rebel happened in Bastar in 1910. Bastar is not a person, Bastar is a region of Chhattisgarh. Okay, so let us start about Bastar. First, we will discuss about the geographical position of Bastar. Bastar located in southernmost part of Chhattisgarh. Okay, student. Look at the map in your book. Here you can see a red circle. In this red circle, Kanger. Kanger is a forest in Chhattisgarh is written in the circle, and near the circle you can see Bastar. Okay, Bastar, basically Bastar is on a plateau. And all the student very well know about plateau. Plateau is माउंटेन की तरह होता है बट ऊपर से टेबुलर फॉर्म में होता है, बिल्कुल फ्लैट. ओके, तो बस्तर इज ऑन प्लेटू एंड रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ बस्तर इंद्रावती. ये इंद्रावती रिवर है, फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके, एंड इसके नॉर्थ में है प्लेन एरिया और साउथ में गोदावरी रिवर मेड द प्लेन एरिया. इसके बाद ये जो इंद्रावती रिवर है ये आकर गोदावरी रिवर में मिक्स हो जाती है. तो सम ऑफ द कम्युनिटीज, फॉरेस्ट कम्युनिटीज लिव नियर इंद्रावती रिवर. इसके आसपास कुछ फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं लाइक मारिया एंड मूरिया बिलोंग्स टू गॉन्ड्स, दुर्वास, भातरस एंड हलबास. दीज आर द फॉरेस्ट कम्युनिटी लिव नियर रिवर इंद्रावती. स्टूडेंट्स, these communities speak different languages but they have some common beliefs and customs. Say for example, इनका मानना है कि the village land were given by the earth. That is why they worship earth, every natural resource like a river, mountain, forest. They show respect to all of these. सबको respect, सबको worship करते हैं ये लोग. And every village protected their natural resources within their own boundary. ये लोग अपने villages के natural resources को protect करते हैं, अपने उनकी सुरक्षा करते हैं. लेकिन अगर उन्हें कभी किसी village से कोई natural resource लेना पड़ जाए, for example wood अगर ये लेते हैं किसी दूसरे village से, तो they pay a small fee. उसके लिए fee pay करते हैं. उन fee को कहा जाता है देवसरी, दंड और मन. Okay. Or some villages protected their forest with the help of an watchman. Watchman भी रखते हैं, and these watchmen paid by some grains. उनको सैलरी के रूप में क्या दी जाती है? ग्रेन. Every year there was a big hunt, annual meeting होती है जहाँ पे प्रीस्ट, हेडमैन और द परगना का जो हेडमैन है, जैसे आपके यहाँ सरपंच होते हैं, वो मिलते हैं. एंड दे डिस्कस्ड अबाउट द कंसर्न ऑफ द फॉरेस्ट एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका व्हाई दिस रिवॉल्ट हैपेंड. ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या सफरिंग्स थी. तो फर्स्ट है द ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड 2/3 forest into reserved forest. Second, ban on shifting cultivation. We have already discussed in the previous video. And third, no hunting and collection of forest product. इन सब पर बैन लगा दिया.
इन सब पर बैन लगा दिया. दीज वर द सफरिंग्स एंड दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ बस्तर वर वरिड. उसके साथ साथ क्या हुआ, दे प्लेड अ गेम. इन्होंने क्या किया कि दे अलाउड सम विलेजेस टू स्टे ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की परमिशन मिल गई ऑन द कंडीशन दैट दे वर्कड फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, एंड दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस. अब क्या हुआ कि ऐसा करने से उन्होंने थोड़ी राहत मिली उन विलेजर्स को कि भाई हम तो रिजर्व फॉरेस्ट में रह सकते हैं. कंडीशन रख दी कि भाई उन्होंने प्रोटेक्ट भी करना है फायर से, ट्रांसपोर्ट भी कराना है और उसको भेजना भी है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट जो सफरिंग थी वो थी विलेजर्स वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन. विलेजर्स को उन्हीं के गांव से बिना नोटिस के, बिना कंपनसेशन के निकाल दिया गया. एंड दे पेड हाई लैंड रेंट. means the Britishers collected high land rent tax from the villagers. This was also a reason of suffering. Next, sometime the British officers demand for free goods and services from the villagers. कई बार फ्री लेबर ले लेते थे, उनकी फ्री सर्विसेज का यूज़ करते थे. तो these were the suffering which caused the revolt of बस्तर and that is why the people of बस्तर were very very worried. अब ये तो सब सफरिंग्स ब्रिटिशर्स ने दी. कुछ नेचुरल सफरिंग्स भी आ गई, जैसे फेमाइंस अकर्ड इन 1899 to 1900. भुखमरी फैल गई. दोबारा ये फेमाइन हुआ 1907 to 1908. तो these were the suffering of the people of बस्तर and these were the reason of this revolt. Okay students, next हम पढ़ेंगे planning of the बस्तर revolt. कैसे प्लानिंग शुरू हुई. आपको बताया था कि एवरी ईयर देयर इज़ वन बिग हंट जहाँ पे हेडमैन, प्रीस्ट और ये सब लोग मिलते थे एंड डिस्कस्ड अबाउट द फॉरेस्ट, देयर कंसर्न, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट. अब क्या हुआ कि कौन इस रिवॉल्ट का इनिशिएटिव लेगा, कौन इस रिवॉल्ट को स्टार्ट करेगा, किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी थी. तो ये थे दुर्वास ऑफ कंगेर फॉरेस्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द मैप अबाउट कंगेर फॉरेस्ट. ओके. तो दुर्वास जो थी वो क्या थी, वॉज अ फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ द कंगेर फॉरेस्ट. इन्होंने ये जिम्मेदारी ली बट देयर वॉज नो सिंगल लीडर. कोई लीडर नहीं था. कुछ लोगों का मानना है कि गुंडाधुर फ्रॉम विलेज नेथनार से बिलोंग करता था. ये इस रिवॉल्ट का लीडर था. अब इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी 1910. मैंगो बो, लंप ऑफ अर्थ, चिलीज, एरो, जैसा होता था ना, ये सब सामान इकट्ठा कर रहे थे. आम की लकड़ी से एरो बनाना, मिर्ची इकट्ठा करना, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विलेजर्स. उसके बाद इसका क्या रिजल्ट रहा, व्हाट हैपेंड इन दिस रिवॉल्ट. फर्स्ट, बाजार्स वर लूटेड. बाज़ारों को लूटा गया. हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, स्कूल and police stations were burnt. Third, colonial officers or officials were attacked by the villagers. Okay, ये जो रिवॉल्ट था ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने जाकर एक जगह पर शरण ली और वो थी जगदलपुर. तो विलियम वर्ड्स इस बारे में कहते हैं, मिशनरी. उन्होंने कहा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट पीएन, स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट्स. ये सब लोग एक सेफ प्लेस, यानी कि इस रिवॉल्ट से भागकर, मतलब जो इसके लोगों ने किया, बाजार वर लूटेड, हाउसेज वर बर्न्ड, ऑफिसेज वर अटैक्ड. इससे बचने के लिए ये एक प्लेस पर जाके इकट्ठा हो गए. कहाँ पे? जगदलपुर. Jagdalpur is a common place where these people went. Okay, so students, this is over in this video here. I hope you have understood this topic and you will read this topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.